Hello, good morning, students. Yes, everybody must be fine, and everybody must be studying hard. Okay, everybody must be studying hard and regularly, and सब होमवर्क भी ठीक से कर रहे होंगे. ओके, ठीक है ना. अच्छे से पढ़ाई करना है, और जिस तरह से सर रेगुलरली आपको पढ़ा रहे, अकॉर्डिंगली आपको साथ में स्टडी करते हुए जाना है. It will be better for you. Okay. Now, जहाँ पे we come back to our subject. Yes, we were on the second chapter and just we had begun with some standard functions. Okay, उसमें भी we have learned that is the identity function. I have explained that thing, constant function and polynomial function. Yes, we reached up to the polynomial functions. Okay, now till then we have just finished that thing, polynomial only. Okay, but in polynomial I just told you that we have no fixed graph for this function. Yes, for identity function we found it was a straight line passing through origin. For a constant function it was a line parallel to x-axis. That just we explained like that. But in polynomial there is no fixed graph. It will depend on which type of polynomial function it is. Okay, now for that I have written one of the polynomial function. Okay, polynomial function was of the form. It was just a general form that we wrote. F of x is equals to a0 plus a1x plus a2x square. Yes, it is not necessary that all power should be there. Okay, but there should be a power of a x, that is a non-negative power of x. Okay, non-negative integer. Okay, that is fine. It was like that. An x raised to n. Okay, in this we have mentioned that x belongs to R, and a0, a1, a2, an, all these are constant. All these constants are also a real number, but the power of, that is exponent of x, is a non-negative integer. Okay, it was like that. Okay, and I have just shown you some examples of also which will be called a polynomial and which will not be called a polynomial. Okay, now from that only here there are two examples related to polynomial in our book as an illustration. This I will explain that thing, and from that you will understand that there will not be a unique graph for this polynomial. Okay, now here define the function f r to r by y is equals to f of x is equals to x square, x belongs to r. Complete the table given below by using this definition. What is the domain and range of this function? Draw the graph of it. Yes, I haven't written the table. Yes, let me just write that thing first. Okay, now I'm just doing it quickly. Yes, there are some values of x. Okay, accordingly we have a values of y is equals to f of x square. It was -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. No. Okay, now it is okay. Okay, now this I draw the table. Okay, complete the table given below by using this definition. Okay, here we see that, yes, I have explained. Again I am just explaining this thing. F r to r by means y is equals to f of x is equals to x square, x belongs to r. Okay, now here what we will have to do, we have to take different values of x, which is a real number. Yes, we substitute here. Accordingly we will get the value of y. It will be nothing. For if we are finding value for x is equals to 1, then y will be called f of 1. Yes, the meaning of f of x is, and y, okay, f of x is, it's the image of x under function f. Okay, we just give it a name y because it is an ordered pair, and the y is the second element of a ordered pair. Okay, so it is like this. It is like this. Okay, now we want to finish this graph using this tab, using this definition. No, यहाँ पे x की values दी है different, -4, -3, -2. We are interested in finding f of x is equals to x square. That is nothing but a y. Okay, here y is equals to, when we are writing y is equals to f of x, that means y is dependent on some value of x, and the equation on which y is dependent, it is
given by is f of x. Okay, f of x is a general notation. Okay, now here we want to find means complete this table now. Okay, for x is equals to 4, so here for x is equals to -4, that means यहाँ पे ये y coordinate ही है f of -4, and we just when we are finding f of -4, that is right hand side, जहां पे भी x होगा वहां पे हम x की वैल्यू -4 रखेंगे, तो ये होगा -4 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये होगा 16. तो यस, फॉर -4 it will be 16. Likewise f of -3, that means यहाँ पे f of -3, x is equals to -3, we are the substituting value of x is equals to -3, तो f of -3, that is the -3 का स्क्वायर, that is equals to 9. Yes, now rest of the things you can fill it up. Yes, f of -2, that is -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, that is the 4, -1 का स्क्वायर 1, yes 0. Yes, f of 1, that is 1 का स्क्वायर, that is the 1, 4, 9 and 16. Okay, this way just we can finish this table only. Okay, just I wrote because I wanted to explain that what is f of x. That's why x की वैल्यू के हिसाब से हमको f of x कैसे फाइंड करना है, वही मेरा मेन इंटेंशन था. दैट मीन्स हमको फंक्शन को कैसे डील करना है. ओके, नाउ दैट इज f of x, इट इज नथिंग बट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट y ही है, बट हम इसको इस नोटेशन से लिखते हैं. आगे जाके अगर सिर्फ f of x इस तरह से लिखा होगा तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट थिंग, या x के अकॉर्डिंगली ये y की वैल्यू है f of x, और वो जो कोई एक x के इक्वेशन पे डिपेंडेंट है, इस तरह का होगा. ओके, ना यहाँ पे ये चीज हो गई. ना ये तो हो गया व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन. ओके, डोमेन में यहाँ पे अगर देखें फंक्शन का पूछा है, ये तो सिर्फ टेबल फिलअप किया है. फंक्शन ये है तो हमको जनरलाइज वे में सारी चीजें फाइंड करनी पड़ेगी. अगर फंक्शन a to b डिफाइंड है तो a विल बी कॉल्ड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन. यहाँ पे फंक्शन r to r डिफाइंड, दैट मींस ये होगा उसका डोमेन. सो यहाँ पे we can write yes domain of f, that is we write d of f is equals to real number set r, and range हमें पता है कि जो x की वैल्यू लेंगे डोमेन में, जैसे यहाँ पे डोमेन r है, दैट मीन्स x की वैल्यू हम कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं. x की जो रियल वैल्यूज लेते हैं, दैट मीन्स डोमेन की ऑल पॉसिबल वैल्यूज के लिए f of x की जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज बनेगी उस सारी वैल्यू के सेट को हम रेंज कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमको x रियल नंबर लेना है और f of x स्क्वायर, दैट मीन्स रियल नंबर का स्क्वायर. वी ऑल नो दैट स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. पॉजिटिव रियल नंबर होगा या नेगेटिव रियल नंबर होगा, उसका स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स यहाँ पे f of x की वैल्यू that will be always greater than equals to 0. That means real positive real number वो उसका रेंज होगा. ओके, सो ये वी कैन ऑल्सो, यहाँ पे दो तरीके के नोटेशन होंगे, वो साइड में भी मैं लिख रहा हूं. यहाँ पे रेंज लिखने से पहले यस हियर हाउ वी कम टू द रेंज, बिकॉज रेंज यानी x की ऑल पॉसिबल, दैट मीन्स डोमेन में जो भी वैल्यूज है उसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज के लिए f of x की जो भी पॉसिबल वैल्यूज आएगी उन सारी पॉसिबल वैल्यू को f of x की वैल्यू को हम रेंज कहते थे. हियर x बिलोंग्स टू r है, देयरफॉर x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. नाउ क्योंकि f of x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर उसकी वैल्यू f of x कही जाएगी. सो कोई भी रियल नंबर होगा उसका स्क्वायर 0 या 0 से उससे बड़ा होगा. सो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. नाउ x स्क्वायर इज व्हाट बेटा, f of x. सो वी कैन राइट f of x is greater than equals to 0. That means for x belongs to R, we are getting value of f of x is greater than equals to 0. That means f of x is always greater than equals to 0. So it is nothing, ये जो सारी वैल्यूज का सेट बनेगा वो कहा जाएगा रेंज ऑफ अ फंक्शन. तो यहाँ पे therefore रेंज ऑफ f, उसको नोटेशन में लिखते हैं r of f. यस, इसकी वैल्यू क्या 0 या 0 से बड़ी. दैट मीन्स वी कैन राइट 2-3 वेज. दैट मीन्स वी कैन राइट लाइक दिस 0 to, ये इंटरवल फॉर्म हुआ
0 to plus infinity, जीरो से बड़ा और प्लस इंफिनिटी, और यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस हियर ऑल्सो, आर प्लस यूनियन जीरो, आर प्लस यानी कि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ये भी उसका नोटेशन हो सकता है। एंड जो सेट के फॉर्म में हम लिखते हैं, ये जस्ट मैं अलग से कर देता हूं, सेट के फॉर्म में हम लिखते हैं तो ये सेट के फॉर्म में भी ये दोनों चीजें लिख सकते हैं। और ये डोमेन ऑफ एफ, इट इज नथिंग बट एक्स, ओके, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, यस, जो हमने यहाँ पे लिखा है वो मैंने जस्ट यहाँ पे सेट के फॉर्म में लिखा। रेंज ऑफ एफ, और रेंज ऑफ एफ दैट मीन्स ये चीज है यहाँ पे एक्स के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स कोई भी रियल नंबर होगा उसका स्क्वायर, ये चीज हम उसको लिख पाएंगे। इस तरह से हमें लिखना है। ओके, सो यू कैन राइट लाइक दिस, ओके, सो ये चीजें हैं, either you can write this way, it is in a set form, और आप इस तरह से भी लिख सकते हो नोटेशन के फॉर्म में, और यहाँ पे ये इंटरवल के फॉर्म में ये भी आप लिख सकते हो। ओके, सो इट इज अबाउट रेंज एंड डोमेन। डोमेन ये तो क्लियर कट हो जाएगा। रेंज के लिए हमें थोड़ा ध्यान देना है कि रेंज किस तरह से डिसाइड होती है। ओके, यहाँ पे रेंज के लिए हम ये चीजें जो डिफाइन किया उसके ऊपर से, स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स कोई भी रियल नंबर होगा तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगी, दैट मीन्स रेंज वो पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ये चीज होगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, अब लास्ट में है इसका ड्रॉ द ग्राफ। ये ग्राफ इसलिए कि मैं आपको जस्ट ये एक्सप्लेन कर पाऊं कि यहाँ पे पॉलिनोमियल के लिए कोई एक यूनिफॉर्म या एक फिक्स ग्राफ नहीं होगा, उसके बारे में हम स्ट्रेट अवे कुछ कह नहीं पाएंगे अनलेस वी ड्रॉ द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। ओके, ना यहाँ पे ये 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, x-axis, y-axis, यहाँ पे I'm just taking 2 4 6 8 and 10, it's -2 -4 -6 -2. Okay, now we'll just plot all these points on this graph. Yes, for x is equals to -4, y is equals to, it is out of range. Yes, we can begin from here. X is equals to -3, y is equals to 9. X is equals to -3, y is equals to 1. So one point will be here. -2, 4. X is equals to -2 at that point. At that time, y is equals to 4. That is -2, 4. -2 and 4. Okay, here it will be like this. Then -1, 1. -1, 1. Somewhere here. 0, 0. Okay, 1, 1. Somewhere here. 2, 4. Yes, 1, 1, 2, 4, 3, 9. Okay, somewhere here. So it will be like this. It is like a parabola. It is a parabola. Actually, it's a graph of a parabola. And हम आगे ये चीजें पढ़ने वाले भी हैं। Okay, उसको इस तरह से लिखा जाता है। It's a graph of f of x is equals to x square. ओके, ये इस तरह से लिखा जाता है। ओके, सो ये इसका ग्राफ है, या जो हमने टेबल फिनिश किया और उसकी डोमेन और रेंज, ये चीज में हमने फाइंड की। ओके, जस्ट राइट डाउन क्विकली। हम ऐसा ही एक और ग्राफ देख लेते हैं, ऐसा ही एक और पॉलिनोमियल फंक्शन देखेंगे। ये मेरा इंटेंशन जो था कि मैं आपको ग्राफ दिखाना चाहता था, और इन केस इफ यू वांट टू फाइंड अ रेंज और अ डोमेन, वो चीज फाइंड करनी तो कैसे फाइंड कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने और एक क्वेश्चन लिखा है। ओके, आपकी बुक में यहाँ तक ही है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एक्स बिलोंग्स टू आर। ये चीज मैंने ऐड की है। ऑल्सो फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। यस, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई एक फिक्स ग्राफ नहीं देता है, कोई एक फिक्स रेंज नहीं देती है। जैसे कि आगे हमने देखे थे आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, इन सारी चीजों में वी वर श्योर अबाउट द रेंज एंड डोमेन। ओके, यहाँ पे डोमेन के बारे में तो श्योर रहेंगे, लेकिन रेंज जिस तरह से पॉलिनोमियल फंक्शन चेंज होगा उस तरह से चेंज होगा। आगे का एग्जांपल था एक्स स्क्वायर, यहाँ पे था एक्स क्यूब, दैट मींस यहाँ पे एक्स का पावर चेंज हुआ है, या अकॉर्डिंगली यहाँ पे रेंज भी चेंज होगी और इसका ग्राफ भी चेंज होगा। ओके, दैट विल सी। मैं ग्राफ बाद में देख रहा हूँ, फर्स्ट हम इसकी रेंज और वो चीज
डोमेन फाइंड कर ले। ओके, यहाँ पे जो दिया गया है वो इस तरह से लिख रहा हूं, ये फंक्शन एफ आर टू आर, यस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू आर दैट मींस एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए डिफाइंड है। एक्स के जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा वो उसका डोमेन कहा जाएगा। एंड यहाँ पे एफ आर टू आर है ना, वैसे भी एफ ए टू बी इस तरह का फंक्शन होगा तो ए विल बी कॉल्ड अ डोमेन ऑफ अ गिवन फंक्शन। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये चीज है फर्स्ट वाला, वो उसका डोमेन रहेगा। यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू डी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी रेंज यानी कि जो डोमेन की सारी वैल्यूज हम एक्स दैट इज अ डोमेन में से आएगा, एक्स की जो सारी वैल्यूज लेंगे डोमेन में से, दैट मीन्स यहाँ पे एक्स वो रियल नंबर लेंगे, तो अकॉर्डिंगली एफ ऑफ एक्स दैट मीन्स एक्स क्यूब की वैल्यू क्या रहेगी। तो यहाँ पे पता है हमको, अगर पॉजिटिव नंबर रहेगा तो पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा, बट नेगेटिव नंबर रहेगा तो नेगेटिव रियल नंबर का क्यूब नेगेटिव होगा। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रियल नंबर्स एफ ऑफ एक्स वैल्यू एज्यूम कर सकता है। यस, आई एम शोइंग हाउ इट इज। ओके, नाउ यहाँ पे हियर, यस, ऑलवेज हम ये चीज फाइंड करेंगे, स्टार्ट यहां से करेंगे, जो डोमेन है उससे स्टार्ट करेंगे, उसके ऊपर से इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी उस पर हम पहुंचेंगे, दैट विल बी द रेंज। ओके, हियर क्या है, एक्स बिलोंग्स टू, दैट इज एक्स कोई रियल नंबर है। ओके, नाउ यहाँ पे एक्स क्यूब यानी कि जो रियल नंबर है उसका क्यूब हमको लेना है। वी नो दैट अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो उसका क्यूब पॉजिटिव होगा, और एक्स नेगेटिव होगा तो उसका क्यूब नेगेटिव। दैट मीन्स यहाँ पे जो एक्स का क्यूब करेंगे तो वो भी कोई रियल नंबर ही होगा। सो वी कैन राइट लाइक दिस, देयरफॉर एक्स क्यूब बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे जीरो का क्यूब जीरो, कोई पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा, और कोई नेगेटिव रियल नंबर का क्यूब नेगेटिव रियल नंबर। दैट मीन्स यहाँ पे सारे पॉजिटिव नेगेटिव रियल नंबर और जीरो सब एक्स क्यूब एज्यूम करेगा। Now x cube is what? It is nothing but f of x. That means f of x belongs to R. That means f of x की वैल्यू कोई रियल नंबर है। So yes, f of x की all real number values का set that will be called the range. So यहाँ पे इसकी रेंज होगी R. Therefore here range of f is equals to R of f is equals to R. यहाँ पे डोमेन भी यही हुआ, रेंज भी यहाँ, रेंज इज नथिंग बट अ कोडोमेन, पूरा आर यहाँ पे आ गया है। ओके, जस्ट ये चीजें हमें समझनी है। आगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था तो डोमेन आर रहा था, लेकिन जो उसका रेंज है वो पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, वो चीज आया, बिकॉज स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे वो रेंज पॉजिटिव रियल नंबर बनेगी, यहाँ पे रेंज रियल नंबर ही बन गई। और वी कैन सी फ्रॉम ग्राफ ऑल्सो, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है तो मुझे ग्राफ को प्लॉट करने के लिए कुछ कोऑर्डिनेट्स चाहिएंगे। ये एफ ऑफ एक्स इट इज नथिंग बट एक्स की कोई वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो आंसर आएगा इसके अंडर दैट विल बी एक्स के रिलेटेड वाई कोऑर्डिनेट होगा। ओके, सो हियर वी कैन जस्ट राइट लाइक दिस, वी कैन टेक सम वैल्यू फॉर दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो दैट मीन्स यहाँ पे जीरो का क्यूब इज इक्वल्स टू जीरो, एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ माइनस, जैसे यहाँ पे एक्स की मैं डिफरेंट वैल्यूज दे रहा हूँ, जीरो माइनस वन, एफ ऑफ माइनस वन, तो यहाँ पे होगा माइनस वन का क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस वन। यस, एफ ऑफ वन लूंगा, यस, तो वन का क्यूब इज इक्वल्स टू वन, एफ ऑफ माइनस टू दैट मीन्स माइनस टू का क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस एट, एफ ऑफ टू that is the cube is equals to 8. Likewise हमको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, x is equals to 0 at that time, y is equals to 0, x is equals to minus 1, y is equals to minus 1, x is equals to 1, y is equals to 1, x is equals to minus 2, y is equals to minus 8, x is equals to 2, y is equals to 8. So यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बनेगी वो इस तरह से, ये 0 0, जब x माइनस वन है तब f ऑफ माइनस वन दैट इज y होगा, ये माइनस वन, जब x वन है दैट इज एफ ऑफ वन, जब x इज इक्वल टू वन है तब ये y दैट इज वन, और जब x इज इक्वल टू माइनस टू होगा
तो एफ ऑफ -2 दैट मीन्स -2 के रिलेटेड y कोऑर्डिनेट वो है -8 और इसी तरह से ये 2, 8। यस, हम ये पॉइंट्स कुछ ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं। Okay, now here 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, x, y, 2, 4, 6, 8, -2, -4, -6, Okay, now we will plot a point. Yes, 0, 0, that means this point. Okay, -1, -1, -1, -1, yes, somewhere here. Okay, उसी तरह से 1, 1, 1, 1, somewhere here. Okay, now then -2, -8, -2, -8. Yeah, it is here. And 2, 8, 2, 8, somewhere here. Okay, it will be like this. Yes, ये आगे बढ़ता हुआ जाएगा. It is f of x is equals to x cube. Graph of f of x is equals to x cube, or you can y is equals to x cube. ये चीज होगी, इस तरह से ये ग्राफ ड्रॉ होगा. ओके, आपने देखा y is equals to x square वो पैराबोला था, y is equals to x cube इस तरह से फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर में जा रहा है. सो ग्राफ्स आर डिफरेंट. पॉलिनोमियल के लिए कोई एक यूनिफॉर्म ग्राफ नहीं देता है. जो पॉलिनोमियल फंक्शन चेंज होगा अकॉर्डिंगली उसका ग्राफ भी चेंज होगा. ओके, सो दीज आर द थिंग्स वो मुझे जो एक्सप्लेन करना था आपको वो. और चीज यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शंस में रेंज भी चेंज होगी. जो फंक्शन जिस तरह से यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा पॉलिनोमियल, उस हिसाब से उसकी रेंज भी चेंज होगी. ओके, यस, उसका जो डोमेन है वो सेम रहेगा क्योंकि किसी भी रियल नंबर के लिए वो डिफाइन होगा, उसकी वैल्यू मिलेगी. लेकिन उस रियल नंबर के लिए जो f of x की पॉसिबल वैल्यूज मिल रही है वो डिफरेंट मिलेगी. आगे वाले x स्क्वायर में हमें सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स मिल रहे थे इंक्लूडिंग 0. यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव रियल नंबर्स एंड 0 सारी चीजें हमको f of x अज्यूम कर सकती है. दैट मीन्स उसका यहाँ पे रेंज आ रही है. ये चीजें, ये डिफरेंस मुझे आपको समझाना था. ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली. और ये रेंज किस तरह से फाइंड करना है ये चीज आपको मेन आपको कंसंट्रेट करना है. ठीक है, और आगे हम देखेंगे दूसरा रेशनल फंक्शन. उसमें जो उसका डोमेन है वो इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगा. ओके, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू नेक्स्ट. ओके, राइट नाउ जस्ट यू राइट डाउन दिस थिंग. ये स्टूडेंट्स, हमने जो स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़ने स्टार्ट किए हैं उसमें हमने आइडेंटिटी को फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन हम पढ़ चुके हैं. वी स्टडीड ऑल थ्री फंक्शंस. उसमें ये एक्सटेंशन है रेशनल फंक्शन. यस, रेशनल फंक्शन फर्स्ट किसके, इसके एक्चुअली ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसका एक्सटेंशन ये. और इस तरह के फंक्शन आपने देखे भी होंगे और उसके साथ आपने डील किया भी रहेगा. ओके, बट आई एम जस्ट राइटिंग रेशनल फंक्शन किससे कहेंगे. द फंक्शन of the form f of x by g of x, where f of x and g of x are polynomial of x defined in the domain where g of x is not equals to 0. ओके, ये चीजें मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ. फर्स्ट तो ये द फंक्शन ऑफ द फॉर्म f of x by g of x where f of x and g of x are polynomial of x. यहाँ पे अभी तक सिर्फ हम पोलिनोमियल पढ़ रहे थे. f of x वो कोई x के पावर का, x के नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर का कोई फंक्शन था, वो f of x था. अब क्या है यहाँ पे, यस, ऐसे ही दो पोलिनोमियल है जिनका हम डिवीजन कर रहे हैं. दैट मीन्स ऊपर भी पोलिनोमियल होगा, न्यूमरेटर में भी पोलिनोमियल होगा और डिनोमिनेटर में भी कोई पोलिनोमियल रहेगा. दैट मीन्स x का नॉन नेगेटिव रियल इंटीजर का, नॉन नेगेटिव पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर का, रियल इंटीजर का जो पावर रहेगा, ऐसे x के फंक्शन रहेंगे. उन दोनों का हम डिवीजन ले रहे हैं. एंड बोथ आर
एंड डिफाइन इन द डोमेन वेयर g of x इज नॉट इक्वल टू 0। यस, क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइन होगा। तो यहाँ पे ये पोलिनोमियल फंक्शन किसके लिए डिफाइन होगा, तो कि जब सब रियल वैल्यूज के लिए होगा एक्सेप्ट जिस x की वैल्यू के लिए g of x 0 होगा उसके लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। सो उसके डोमेन में x की वो वैल्यू काउंट नहीं की जाएगी। नाउ डोमेन इज व्हाट, नाउ डोमेन हम रियल टर्म्स में पढ़ेंगे। तो कोई फंक्शन है x का, कोई भी फंक्शन x का कोई भी इक्वेशन है, तो वो इक्वेशन x की जिस वैल्यू के लिए हम डिफाइन कर पाएंगे वो x की सारी वैल्यूज उसका एक्चुअली डोमेन कहा जाता है। और x की जो डिफाइंड वैल्यूज होती है मीन्स डोमेन में जो भी वैल्यूज रहती है उसके अकॉर्डिंगली f ऑफ x की जो वैल्यूज का सेट बनता है वो उसका रेंज कहा जाता है। ये हमने यस डोमेन और रेंज का ये कंसेप्ट हमने पढ़ा है। ओके, नाउ यहाँ पे जब इस तरह का होगा तो वहां पे डोमेन भी रिस्ट्रिक्ट होगा। किस तरह से, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ओके, यस, ये सारे क्या है, इसका आप कोई फिक्स नहीं लिख पाओगे। जिस तरह से एग्जांपल दिए होंगे उस अकॉर्डिंग उस हिसाब से हमें उसके डोमेन और रेंज के बारे में सोचना रहेगा। ओके, यहाँ पे जैसे कि पॉलिनोमियल में ही देखा हमने एक्स स्क्वायर का रेंज अलग था और एक्स क्यूब का भी रेंज अलग था। सो जो पॉलिनोमियल चेंज होगा उसके अकॉर्डिंगली इसकी रेंज चेंज होगी। यहाँ पे रेशनल फंक्शन में जिस तरह से ये फंक्शन डिफाइन होगा उसमें जिस तरह से पॉलिनोमियल चेंज होगा उस हिसाब से उसकी रेंज भी चेंज होगी, सॉरी डोमेन भी चेंज होगा। ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल देख के मिस लिख के दिखा रहा हूं। ओके, यहाँ पे लेट f of x is equals to x square plus 2x plus 3 upon x square minus x minus 2। Now, अब हम यहाँ पे देखेंगे इज इट अ रेशनल फंक्शन और नॉट। यहाँ पे दो डिवीजन है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 वो x का पोलिनोमियल, बिकॉज इसका x का जो पावर है वो यस नो नेगेटिव रियल इंटीजर है। ओके, नाउ डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है। या यहाँ पे मैंने दोनों में x स्क्वायर लिया है तो कंपलसरी नहीं है कि दोनों के पावर सेम होने चाहिए, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने दोनों के सेम लिए और कुछ नहीं है। यहाँ पे ये चीज देखेंगे तो न्यूमरेटर में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दैट मींस ये x का पोलिनोमियल है, वेरिएबल ऑफ x का पोलिनोमियल है, डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 दैट इज डिनोमिनेटर में भी x का पोलिनोमियल है, दैट ये भी पोलिनोमियल है x का, ये भी x का पोलिनोमियल है, इन दोनों का डिवीजन है तो ये रेशनल फंक्शन है। लेकिन ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R दैट मींस सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कैसे, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। ओके, यहाँ पे जब जब जिस x की वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 होगा तब ये अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड वैल्यू हमें नहीं चाहिए। यस, x की ऐसी वैल्यू के जिसके लिए मुझे कोई वैल्यू, कोई इसकी सर्टन वैल्यू हमें मिले, वो x की वैल्यू के लिए डिफाइन कर पाएंगे। जिसके लिए डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा उसके लिए डिफाइंड वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके, सो ये चीज हमको समझ के चलना है और वो सारी x की वैल्यू वो उसका डोमेन कहा जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे x स्क्वायर प्लस न्यूमरेटर में 0 आएगा तो वो प्रॉब्लम नहीं है, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग विल बी 0, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 होगा तो वो फंक्शन, इसीलिए यहाँ पे ये चीज लिखा जाता है डिफाइंड इन द डोमेन वेयर g of x इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में g of x है, यहाँ पे g of x यानी कि ये होगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 और f of x यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये चीज होगा। ओके, नाउ अब ये x की किस वैल्यू के लिए डिफाइन होगा और नहीं होगा वो कैसे डिसाइड करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे यस ऊपर के फैक्टर्स पढ़े ना पढ़े न्यूमरेटर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, मेन है यहाँ पे ये चीज g of x should not be equals to 0, वो उसका डोमेन डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स होते कि नहीं वो हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, नीचे हम यस माइनस 2 के फैक्टर 2 1 जा यस इसके फैक्टर्स होंगे x माइनस 2 x प्लस 4। नाउ अब क्या होगा, नीचे दो फैक्टर्स पड़े, अगर इस फैक्टर को मैं 0 के साथ इक्वेट करता हूं तो मुझे x की वैल्यू कौन सी मिलती है, x इज इक्वल टू 2 या तो x इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स वो उसके रूट्स होंगे, वो चीज उसको यहाँ उसका सॉल्यूशन कहा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर फैक्टर्स आ रहे हैं और उससे इट इज इक्वल टू मुझे 0 मिल रहा है, 0 में इक्वेट कर रहा हूं तो उसके ऊपर से मुझे दो वैल्यूज यहाँ पे मिलेगी, x इज इक्वल टू 2
और x इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ पे ये f ऑफ x है, अगर मैं f ऑफ 2 फाइंड करूंगा, f ऑफ 2 फाइंड करूंगा तो यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू मिलेगी, लेकिन यहाँ पे 2 रखूंगा तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। तो ये 0 से डिविजिबल, दैट इज नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 के लिए ये डिफाइन नहीं होगा। तो इसके डोमेन में x इज इक्वल टू 2 हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 के लिए ये g ऑफ x है, ये भी g ऑफ x होगा। x इज इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे नीचे वाला 0 हो रहा है, दैट मीन्स g ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो रहा है, लेकिन नीचे g ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 लूंगा, अगर हम x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है और ये अनडिफाइंड वैल्यू आ रही, तो x इज इक्वल टू 2 के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो उसके डोमेन में x इज इक्वल टू 2 नहीं आना चाहिए। लाइकवाइज यहाँ पे x प्लस 1, तो उसके ऊपर से x इज इक्वल टू माइनस 1 मिल रहा है। अगर मैं x इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए वैल्यू फाइंड करूंगा f ऑफ माइनस 1, तो f ऑफ माइनस 1 यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू मिलेगी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में या इसके लिए कोई मिलेगी -3, लेकिन ये हो जाएगा 0। -3 इंटू 0 0, दैट मीन्स इट इज डिवाइड बाय 0 विच इज अगेन अनडिफाइंड वैल्यू मुझे मिलेगी। दैट मीन्स ये बाकी सारी x की वैल्यू के, हाँ x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू -1 के अलावा आप x के अलावा इसके अलावा कोई भी रियल वैल्यूज लेंगे, 2 एंड -1 के अलावा कोई भी रियल वैल्यूज लोगे तो यस ये नॉन जीरो टर्म बनेगा और हमें कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा, दैट मीन्स ये डिफाइन होगा। लेकिन x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1 के लिए f ऑफ x डिफाइन नहीं होगा, तो इसमें सारे रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 2 एंड -1 वो उसका डोमेन कहा जाएगा। किस तरह से, यहाँ पे इन अबव इक्वेशन फॉर x इज इक्वल टू 2, या इसको 0 से इक्वेट करना है, फॉर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -1 वी गेट undefined values, because for these two values the denominator is equal to 0. Therefore, f of x will be defined for all values of r except 2 and -1. Therefore, domain of f, ये इस केस में f ये चीज है, इज इक्वल टू r माइनस -1 एंड 2। मुझे ये आपको समझाना था, इस पॉलिनोमियल फंक्शन में, सॉरी रैशनल फंक्शन में ये चीजें है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जिस x की वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 होगा, वो x की वैल्यू उसकी डोमेन में, बाकी सब जो रियल जनरली कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, जैसे इस तरह से f ऑफ x इस तरह से लिया है ना, तो वी एज्यूम दैट इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज। लेकिन यहाँ पे इस तरह से रैशनल फंक्शन होगा, तो रैशनल फंक्शन में यस डिनोमिनेटर में x की जिस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 होगा, उस 0 के लिए अनडिफाइंड बनेगा। तो रियल नंबर में के नंबर के सेट में से जिस x की वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि उस वैल्यू के लिए ये f ऑफ x itself will not be defined। यहाँ पे x की वो सारी वैल्यू हमें लेनी है जिसके लिए f ऑफ x हम डिफाइन कर पाए, f ऑफ x कोई हमें वैल्यू मिले, वो उसका डोमेन कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है इस तरह से ये चीज, सो रेशनल फंक्शन में ये है। यहाँ पे नीचे के फैक्टर्स अगर हमको मिल रहे हैं उसको 0 से इक्वेट करोगे तो आपको जो भी x की वैल्यू मिलेगी उस x की वैल्यू के लिए इसका डिनोमिनेटर 0 होगा, वो उसके डोमेन में से रियल नंबर के सेट में से ये वैल्यूज हमें एक्सक्लूड करनी पड़ेगी। इसके अलावा बाकी सब नंबर्स के लिए यस वी कैन जस्ट सी फ्रॉम दिस फैक्टर, अगर x की वैल्यू 2 और -1 के अलावा और कोई भी वैल्यू है तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई रियल नंबर्स मिलेगा और हमको डिवीजन पॉसिबल होगा और f ऑफ x की कोई
वैल्यू मिलेगी। ओके, सो इस तरह से ये डोमेन ऑफ एफ इस तरह से किया जाता है। ओके, सो रेशनल फंक्शन के बारे में जो हमने पॉलिनोमियल देखा, पॉलिनोमियल के ऊपर से रेशनल फंक्शन के ऊपर हम आए तो यहाँ पे ऐसा कोई रेंज फिक्स नहीं होता है, यहाँ डोमेन फिक्स नहीं, वो क्या फंक्शन दिया है उसके हिसाब से उसका डोमेन और रेंज फिक्स करना होता है। वो जो मैंने आपको दोनों एग्जांपल्स आपको, या इनफेक्ट ये तीसरा एग्जांपल हुआ, तीनों से ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है। ओके, वो ध्यान रखना है। और हमारी एक्सरसाइज में भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है, मैं तब आपको अगेन ये सारी चीजें समझाऊंगा। ओके, सो राइट डाउन दिस थिंग। इसके बाद हमें जो सीखने हैं 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें इसको पढ़ने हैं, वो चीज हम देखेंगे। और रेशनल फंक्शन का और एक भी आपकी बुक में एग्जांपल दिया है, लेट अस सी दैट थिंग आल्सो। ओके, ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने जो आपका रेशनल फंक्शन है उसके बेस पे ये चीजें है, और आपकी बुक में उसको ग्राफ ड्रॉने का यहाँ तो कुछ पॉइंट्स फाइंड करने को बोला, वो चीज मैंने एक्सक्लूड की है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने यहाँ पे रखी है। ओके, डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन। यस, अगेन जो आपको मैंने समझाया था, रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, यहाँ पे यस कई बार ये चीजें लिखते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। यहाँ पे रियल वैल्यूड फंक्शन यानी जिस फंक्शन की रेंज वो रियल नंबर सेट आर या वन ऑफ द सबसेट ऑफ आर होगा, उस फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन, दैट मीन्स रेंज आर या आर का सबसेट होना चाहिए। ओके, और रियल फंक्शन जिसका डोमेन एंड रेंज दोनों आर या आर का सबसेट हो तो वो रियल फंक्शन कहा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये रियल वैल्यूड फंक्शन मैंने उस टाइम पे भी आपको जस्ट ये पॉइंट आउट किया था कि कई बार एग्जाम्पल में इस तरह से वो लिखते हैं, तब हमें पता चलना चाहिए कि व्हाट इज इट। ओके, यहाँ पे एफ आर माइनस जीरो का मतलब ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ओके, नाउ हमको ये चीज यहाँ पे एक स्ट्रेच चाहिए, अगर कोई फंक्शन का किसी सेट से या किसी सेट पे डिफाइन वो दिया होगा तो फर्स्ट वाला ऑलवेज उसका डोमेन बन जाएगा। यहाँ पे एफ आर माइनस जीरो टू आर, अगर फंक्शन एफ ए टू बी है तो सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। यहाँ पे अगर इस तरह से डिफाइन किया रहेगा तो यहाँ पे एफ आर माइनस जीरो टू आर, ए की प्लेस पे आर माइनस जीरो है, जिसमें इसका डोमेन ऑटोमेटिकली आर माइनस जीरो है। और यहाँ पे हम ये चीज फाइंड भी कर सकते हैं क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स होगा, तो यस यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो लेंगे तो डिनोमिनेटर में जीरो होगा, वो अनडिफाइन होगा। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स अनडिफाइन हो रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है, आर माइनस जीरो, जीरो के अलावा बाकी सब रियल नंबर्स, वो उसका डोमेन हो गया। ओके, दैट मींस एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो, एक्स सारी रियल वैल्यूज आएगी एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं आएगी, बाकी सब उसकी आ जाएगी। यस, ये चीज यहाँ पे जो मैंने आगे जस्ट आपको रेशनल फंक्शन का जिस तरह से देखा है वही चीज यहाँ पे ये डायरेक्टली लिखी हुई है। तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे वी कैन राइट हियर यस डोमेन, यस यही उसका डोमेन हो जाएगा। फंक्शन इज, इफ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी तो विल बी द डोमेन। तो यहाँ पे ये दे दिया है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये डोमेन ऑफ एफ d of f is equals to r minus जीरो, जीरो के अलावा बाकी सब रियल नंबर्स। ओके, नाउ इसकी रेंज, नाउ यहाँ पे एक चीज होगा, ये रेंज किस तरह से डिसाइड होगी, यहां से शुरू करेंगे। जिस x की वैल्यू के लिए डिफाइन है उस x की वैल्यू के लिए 1 बाय x की वैल्यू क्या आ रही है, और 1 बाय x की सारी वैल्यू का जो सेट बनेगा दैट विल बी द range of this function. Okay, तो यहाँ पे again here x belongs to r minus जीरो, that means x वो जीरो के अलावा कोई भी रियल नंबर है, पॉजिटिव या रियल नंबर। ओके, अगर x पॉजिटिव रियल नंबर है या पॉजिटिव रियल नंबर तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा। ओके, जैसे you take 0.01 तो उसका रेसिप्रोकल 100, that is the reciprocal number. इफ यू टेक 100 उसका रेसिप्रोकल 0.01 वो भी रियल नंबर होगा। अगर x कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी कोई रियल नंबर ही होगा। सेम वे अगर x कोई रियल नेगेटिव नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी कोई रियल नेगेटिव नंबर ही होगा। जैसे -1 का रेसिप्रोकल -1 होगा, यस -0.5 का रेसिप्रोकल -2 होगा। इस तरह से 5 का रेसिप्रोकल -5 का रेसिप्रोकल -0.2 होगा। दैट मीन्स कोई भी नॉन रियल
नेगेटिव नंबर हो, मीन्स नॉन जीरो नेगेटिव रियल नंबर होगा, नेगेटिव रियल नंबर होगा तो उसका रेसिप्रोकल भी यहाँ पे, और यहाँ पे जीरो तो लेना ही है, लेना ही नहीं है तो यहाँ पे एक्चुअली 1/x है, तो जीरो लेना ही नहीं, तो जीरो के लिए वैल्यू फाइंड, जीरो के अलावा सारी वैल्यू के लिए, जीरो के अलावा बाकी वैल्यू कौन सी रही यहाँ पे, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए मुझे उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव रियल नंबर, और नेगेटिव रियल नंबर के लिए उसका रेसिप्रोकल भी कोई नेगेटिव रियल नंबर, वही होगा एक्सक्लूडिंग जीरो, क्योंकि यहाँ पे जीरो है नहीं, और कोई भी पॉजिटिव का रेसिप्रोकल जीरो नहीं होगा, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर का रेसिप्रोकल वो जीरो होगा नहीं। सो वी कैन राइट लाइक दिस हियर, ये एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे लिखता हूं, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर x, the 1/x will also be a positive real number, and for any negative real number x, its reciprocal 1/x is also a negative real number. That means यहाँ पे अगर कोई x कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो f of x that is 1/x, that is the f of x will be some positive real number. अगर x कोई नेगेटिव रियल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल 1/x, दैट इज उसके अकॉर्डिंगली f of x वो भी कोई नेगेटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि कोई भी रियल नंबर का पॉजिटिव रियल नंबर या नेगेटिव रियल नंबर का रेसिप्रोकल जीरो होगा नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे जो रेंज में जो f of x की जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव या नेगेटिव रियल नंबर ही मिलेगी एक्सक्लूडिंग जीरो। Therefore 1/x belongs to r minus 0. x belongs to r minus 0 तो उसका रेसिप्रोकल 1/x also r minus, और 1/x क्या है यहाँ पे f of x, therefore यहाँ पे f of x belongs to r minus 0, therefore range of f, that is rf, is equals to r minus 0. Okay, this is a subset of कोडोमेन r, ये इसका सबसेट होगा, क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूड होगा, इसमें जीरो नहीं है, तो ये इसका सबसेट है। ओके, और ये कंडीशन भी है, जो रेंज है वो इट इज आइदर अ सबसेट ऑफ अ कोडोमेन और कोडोमेन, दोनों में से एक चीज हो सकता है। ओके, यहाँ पे रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन आर, ये चीज बन रही है। तो यहाँ पे जो डोमेन है वो भी r माइनस 0 है, और जो रेंज है वो भी r माइनस 0, ये चीज बन रही है। ओके, सो इस तरह से हमें इसे एग्जाम्पल में इनके रेंज वगैरह फाइंड, और ये चीजें मैं आपको मीन्स डिटेल में भी समझा रहा हूँ, और सब बेसिक चीजें भी ये चीजें दिखा रहा हूँ, बिकॉज ये आपको लॉन्ग रन में आपको ये सारी चीजें बहुत काम आने वाली है। आगे बहुत सारी चीजों में आपको इसका यूज करना रहेगा, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारी चीजें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, दो इट इज नॉट एक्सप्लेन इन डिटेल इन योर बुक, लेकिन ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में इस तरह से समझा रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, फंडामेंटल चीजें हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहती है उसमें कोई चीज ऐसे कोई डिफिकल्ट चीज नहीं रहता है, वो फंडामेंटल आपको चेक करते हैं, वो आप कितना अंडरस्टैंडिंग किया है कंसेप्ट का, वही चीज होता है। इसलिए मैं थोड़ा जस्ट ये चीज आपको डिटेल से और डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ओके, सो जस्ट राइट डाउन दिस एग्जाम्पल में हम आगे और तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शंस, दैट इज अ मॉड्यूलस फंक्शन, साइनम फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपके लिए वो शायद नए होंगे, या मॉड्यूलस आपको पता रहेगा, लेकिन जो मॉड्यूलस फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है हमारा इस स्टैंडर्ड में वो थोड़ा हमें समझना होगा। ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन दिस थिंग, हम आगे बढ़ते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे द मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, ना मैं इसको लिख रहा हूँ, थोड़ा फिर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, फिर आगे और चीजें हम लिख रहे हैं। ओके, द फंक्शन f r to r defined by
f of x is equals to mod x is, okay, for each x belongs to R is called the modulus function. Okay, now इसके नीचे मेरे को इसका ऐसे f of x is equals to mod x, you know that, okay? आपको ये चीज भी पता रहेगी. Let us say मैं यहाँ पे mod 3 लिख रहा हूँ, तो उसका आंसर हमें पता है 3. अगर मैं लिख रहा हूँ mod -3, तो इसका आंसर मैं लिखूंगा 3. दैट इज अंदर mod के अंदर कोई भी वैल्यू है तो हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू हम लेते हैं. अंदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके ऑलवेज हम पॉजिटिव. इस mod 3 तो उसका आंसर 3 लिखते हैं, और mod ऑफ -3 तो उसका भी आंसर 3. दैट मींस ये एब्सोल्यूट वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू इस तरह से लेते हैं. लेकिन यहाँ पे हमको जनरल कंसेप्ट में समझना है. दैट मींस x की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो किस तरह से लिखेंगे. एक्चुअली अगर हम इसको एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो अगर x कोई यस इवन ये चीज होगा mod 0, तो हम इसको 0 लिखेंगे. ठीक है ना. यहाँ पे इसका मतलब ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर 0, 3, 5 इस तरह से नॉन नेगेटिव. अगर x नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा तो हम ये mod रिमूव करते हैं और f of x इज इक्वल्स टू x लिखते हैं. ओके, जो अंदर वैल्यू है वही चीज लिखते हैं. लेकिन यहाँ पे अगर x mod के अंदर वो नेगेटिव रियल नंबर है तो f of x इज इक्वल्स टू ये डायरेक्ट नहीं लिखते, लेकिन हम क्या करते हैं, ये चीज लिखते ही है. ये चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -3 अंदर की वैल्यू, लेकिन उसके आगे हम माइनस ऐड करते थे. जैसे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस इस तरह से करते हैं. तो यहाँ पे ये चीज हम समझेंगे. अगर यहाँ पे x की वैल्यू कोई नॉन नेगेटिव नंबर है तो जस्ट वी राइट, जस्ट सिंपली रिमूव mod रिमूव करते हैं, अंदर जो x है वही f of x इक्वल्स टू x लिखेंगे. और यहाँ पे यस ये कंसिडर करो x है. अगर x की वैल्यू कोई नेगेटिव नंबर है तो हम यस उसके आगे वो नंबर लिख के सेम अंदर वाला जो नंबर लिखे उसके आगे माइनस साइन रखते हैं. ओके, दैट मींस यहाँ पे हम ये mod रिमूव करके अंदर वाला, अगर mod के अंदर नेगेटिव है तो यस mod रिमूव करके इसके आगे नेगेटिव साइन रखते हैं. यस mod रिमूव करके -3 है, उसके आगे मैंने माइनस साइन रखा, तो इसका रियल आंसर मुझे मिला. ये एक्चुअली हम जनरल वे में यहाँ पे जस्ट 3, -5, -7 अलग अलग नंबर्स के लिए ये लिखेंगे. लेकिन जनरल वे में ये कंसेप्ट मुझे डिफाइन करना है, बिकॉज फंक्शन इज नथिंग बट इट्स अ जनरलाइज कंसेप्ट. 11th में जैसे ये सारी चीजें आप 10th तक पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, डील कर चुके हैं. लेकिन यहाँ पे आगे हम क्या कर रहे हैं, यही चीजें वापस यूज कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे किस तरह से लर्न कर रहे हैं, तो हम इसको जनरलाइज वे में लर्न कर रहे हैं. यस, फंक्शन का मतलब ही वही है. तो यस, एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए, जनरल के लिए, इन जनरल सभी वैल्यू के लिए हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वही चीज फंक्शन का मतलब है और कुछ नहीं है. ओके, सो यहाँ पे यही चीज मुझे करना है. यहाँ पे सिंगल अलग अलग वैल्यूज के लिए नहीं, लेकिन x की वैल्यू कोई होगी तो उसको डायरेक्ट मैं यहाँ से किस तरह से लिख कर पाऊंगा. तो यहाँ पे जैसे मैंने एक्सप्लेन दिया, अगर if x is a non-negative number, then f of x will be written by removing this modulus only x. And if x is a negative number, then we write f of x is equals to अंदर का जो वैल्यू -x, where x is a मोड के अंदर का जो वैल्यू है वो इस तरह से लिखेंगे. यस, ये चीज लिख रहा हूं और इसको मैं यहाँ पे वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, और ये कंसेप्ट हमें बहुत जगह पे यूज करना होगा. ओके, ना यहाँ पे if x is a non-negative number, that means negative का अलावा 0 या पॉजिटिव नंबर, then the value of f of x is equals to x. Simply हम ये रूल करें. But if x is a negative number, negative real number, then the value of f of x is equals to -x. जो मैंने यहाँ पे किया है यही लिखा है, उसके आगे मैंने माइनस लिख दिया. पॉजिटिव था तो जो था वही लिख दिया, नेगेटिव था तो -3. इस तरह से ये जनरलाइज वे में हमने कंसेप्ट किया. ओके,
देयरफॉर यहाँ पे आगे लिखेंगे देयरफॉर यस वी कैन राइट यस एफ आर टू आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स यस x belongs to R is equals to x if x is greater than equals to 0 and minus x if x is less than 0. yes ये चीज होगा ये चीज, लेकिन हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। यस अगर मोड के अंदर की वैल्यू कोई पॉजिटिव है तो एज इट इज उसको मोड रिमूव करके लिखेंगे, अगर मोड के अंदर की नेगेटिव वैल्यू है तो उसको हम लिखते हैं और उसके आगे माइनस साइन करके उसको वो पॉजिटिव कर देते हैं। ये चीज ये अल्टीमेटली दोनों पॉजिटिव हो, क्योंकि x नेगेटिव 0 है तो माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। इस तरह से ये चीजें हम ये जनरल वे में हमें रिप्रेजेंट करना है और ये नोटेशन आपको बहुत का बहुत ध्यान रखना है। और जेडब्ल्यू में मॉड्यूलस के फंक्शन वो बहुत ही पूछते हैं। यस डायरेक्टली इनडायरेक्ट ऐसे जरूरी नहीं है कि फंक्शन के वे में ही, लेकिन दूसरे सारे एग्जाम्पल में भी ये कंसेप्ट मोड का ये बहुत ही यूज करते हैं। ओके तो यहाँ पे ये चीजें हमें ध्यान रखना है। ओके सो दिस आर द थिंग्स, ये चीजें इस तरह से करनी है। ओके सो हियर इट विल बी लाइक दिस, और यहाँ पे इसके ऊपर मुझे एक और थोड़ा मैं और भी इसमें कंसंट्रेट करूंगा और चीजें भी मैं आपको समझाऊंगा। ओके ना यहाँ पे अब देखते हैं मोड फंक्शन होगा तो मोड फंक्शन का रेंज और डोमेन क्या होगा। यस जिस x की वैल्यू के लिए हम इसको डिफाइन कर पाएंगे। ओके यहाँ पे एफ आर टू आर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे x बिलोंग्स टू आर है तो x कोई भी रियल नंबर होगा। सो इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर सेट आर बनेगा, देयर इज नो डाउट। ओके यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज रियल नंबर सेट आर। ओके नाउ इसका रेंज यानी कि यहाँ पे हमको x की कोई भी रियल वैल्यू दैट मींस ये लेंगे, डोमेन की जो वैल्यूज है वो यहाँ पे लेंगे, तो अकॉर्डिंगली एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी ये समय पता है। मोड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, मोड के अंदर नेगेटिव होगा तो वो भी पॉजिटिव, दैट मींस इट विल रिप्रेजेंट ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ओके दैट मींस इसका एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एक्स कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं, लेकिन कोई भी रियल नंबर होगा तो इसके मोड का इसका आंसर क्या आएगा, दैट मींस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो एफ ऑफ एक्स की किसी भी एक्स रियल वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ओके सो हियर यस फॉर या इसके लिए मैं इस तरह से फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर मॉड्यूलस ऑफ एक्स is greater than equals to 0. Therefore, modulus of x, that means f of x यहाँ पे हुआ, f of x is greater than equals to 0. Therefore, range of f of x is equals to mod x is r plus union 0, or you can write like this 0 to plus infinity, दोनों में से कोई x is greater than equals to yes, f of x is greater than equals to 0, ये चीज दोनों में से कोई एक लिख सकते हो आप। ओके सो इस तरह से ये चीजें करनी है हमें। ओके सो मॉड्यूलस ये दिस आर स्टैंडर्ड फंक्शंस, ये स्टैंडर्ड फंक्शंस के डोमेन क्या होंगे, रेंज क्या होगी, वो हमें ध्यान रखना है। यू नीड नॉट क्रैम ऑल दिस थिंग्स, मैं आपको पूरा सिस्टम समझाता हूँ क्यों डोमेन मैंने ऐसा लिखा, क्यों रेंज मैंने ऐसा, ये सारी चीजें मैं आपको यस वो प्रोसेस ध्यान रखिएगा तो आप किसी में से भी बाहर निकल पाओगे, वो बड़ी चीज नहीं है। ओके यहाँ पे जस्ट किसी भी फंक्शन का डोमेन या रेंज आपको फाइंड करना है तो फर्स्ट जो एफ ऑफ एक्स लिखा है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा होगा तो जिस एक्स की वैल्यू के लिए वो डिफाइन होता है, दैट इज जिस एक्स की वैल्यू के लिए हम एफ ऑफ एक्स फाइंड कर सकते हैं ऐसी एक्स की सारी वैल्यूज वो उसका डोमेन कहा जाएगा। और डोमेन जिस एक्स की वैल्यू के लिए डिफाइन होगा उस एक्स की सारी वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू का सेट दैट विल बी द रेंज कहा जाएगा। ओके ये दो चीजें आपको डोमेन और रेंज के बारे में ध्यान रखना है। और
यहाँ पे जस्ट इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा, तो इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स लिया है, तो एफ ऑफ 0 दैट इज मॉड 0 इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ -1 दैट इज मॉड ऑफ -1। या नाउ आपको ये सारी चीजें पता रहेगी कि मैं एफ ऑफ -1 मॉड -1, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है। ओके, तो यहाँ पे एफ ऑफ -1 या एक्स की जगह -1 इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू मॉड 1 इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -2 इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। लाइकवाइज यस, यहाँ पे हमें एक चीज पता चल गई, ये जो यहाँ पे एफ ऑफ 0 दैट मींस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, तो अकॉर्डिंगली वाई इज इक्वल टू 0, दैट मींस ये एक पेयर बनेगी 0 0। एक्स इज इक्वल टू -1 लेंगे तो वाई इज इक्वल टू 1 लेंगे। ये साइड में ये पेयर में लिख देंगे 0 0 या x 0, अकॉर्डिंगली जो एफ ऑफ एक्स मिलेगा वो y कहा जाएगा, दैट इज द 0। यहाँ पे x इज इक्वल टू -1, तो अकॉर्डिंगली जो एफ ऑफ -1 आएगा वो वैल्यू उसकी y कही जाएगी, दैट इज द 1। और सेम में यहाँ पे 1 1, ये -2 2 और 2 2। ओके, जस्ट आई एम राइट प्लॉटिंग ऑल दिस पॉइंट्स, x एक्सिस y एक्सिस। ओके, यहाँ पे 1 2 3 -1 -2 -3, 1 2 3 -1 -2 -3। ओके, यहाँ पे जस्ट ये प्लॉट 0 0 दैट मींस ये पॉइंट हुआ, -1 1 -1 1, यहाँ पे ये पॉइंट आया 1 1, सो ये पॉइंट बनेगा, -2 2, यस ये पॉइंट बनेगा, और उसी तरह से 2 2 ये पॉइंट बनेगा। यस, इट्स एक्चुअली स्ट्रेट लाइन से वी शेप बनेगा। ये इट इज कॉल्ड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ओके, वी नो दैट y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, तो y की वैल्यू पॉजिटिव, इस ग्राफ इस तरह से जाता है। ये आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, ये कहा जाएगा मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, सो जस्ट आपको यहाँ पे फंक्शन बेसिक पढ़ने हैं स्टैंडर्ड फंक्शन से, उसकी रेंज और डोमेन के बारे में आपको जस्ट ये अभी भी मैं कोई भी होमवर्क नहीं दे रहा हूं, लेकिन जितने फंक्शंस मैंने आपको पढ़ा है स्टैंडर्ड फंक्शंस, उसको आपको ठीक से पढ़ाई करनी है, जस्ट समझना है। इफ यू आर फाइंडिंग एनी इफ यू डिफिकल्टीज और आपको कोई क्वेरी है तो यस यू प्लीज कॉन्टेक्ट मी, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत फंडामेंटल चीजें हैं, बुक में इतना नहीं है, लेकिन इस चीज का यूज बहुत ही वास्ट है। ओके, दूसरे सारे जगह पे इसको इन्वॉल्व करके दूसरे एग्जाम्पल में इसको ऐड किया जाता है, वो तब आपको हमें ये बेसिक चीजें वहां पे हम यूज करके उसमें से बाहर निकल सकते हैं। ओके, सो ये चीज आप ठीक से देख लीजिए। अभी तक हमने 5 फंक्शन पढ़े, वो आपको समझ होनी चाहिए। आइडेंटिटी, देन कांस्टेंट फंक्शन, देन पॉलिनोमियल, रैशनल एंड नाउ मॉड्यूलस। इसके अलावा और 2 है इंपॉर्टेंट चीज है, वो इसको नेक्स्ट साइनम एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो चीज हमको दोनों देखना है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जिस तरह से मैं आपको मॉड्यूलस का बोल रहा हूँ, दूसरे के साथ ये मिक्स करके उसमें ये कंसेप्ट ऐड किया जाता है, तो उसी तरह से जस्ट जो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसको भी बहुत ऐड किया जाता है। साइनम का भी इक्वली इंपॉर्टेंस है, उसको आगे फंक्शन में हम उसका कंपोजिशन करेंगे तब, दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर की बात है, तब वो वहां पे ये सारी चीजें हमें काम आएगी। ओके, सो जस्ट रीड दिस थिंग, सब चीज अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछिए। बाकी आगे के 2 जो फंक्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कैरी ऑन करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बट रेगुलरली पढ़ाई करते रहिए, रेगुलरली होमवर्क करते रहिए। ओके, और सर जैसे कह रहे हैं जस्ट उसे फॉलो कीजिए, यस 100% आपको बेनिफिट होगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।